स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर से टीपू के आशिक की श्रीरंगपट्टन रवानगी। इश्क वो होता है जिसमें दीवानगी हो। मोहब्बत का तकाजा तब पूरा होता है जब आशिक अपने चाहने वाले के रंग में पूरा रंग जाए। हिंद के सच्चे सपूत मुजाहिद आज़ादी में अपनी जान निछावर करने वाले टीपू सुल्तान शहीद के सच्चे शहदाई की 20 सालों से ज़्यादा टीपू से अकीदत का ये परचम आज तक झुकने नहीं दिया। बीजापुर के अली का रोज़ा में रहने वाले वजीफ़े आप प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर अहमद इनामदार के घर से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर संदल चढ़ाने का सिलसिला कई सालों से इस रिवायत को बरकरार रखते हुए कल बीजापुर से श्रीरंगपट्टन रवाना हुए। इस मौके पर हाशिम पिरवालीकर इसके इनामदार टीपू के शहदाइयों की मौजूदगी में टीपू के पसंदीदा बहादुरी के निशानों शेर के रंग की परचमों में यह काफिला रवाना हुआ। सरदार जी जरा ऊपर लेकर तलवार जरा तलवार ऊपर करो। सेंटर मिलो अंदर ले जा रहे हैं। बीजापुर की सरजमीन तारीखी शहर आज तारीख 7 जुलाई 2019 बीजापुर शहर अली के रोज़ा से हर साल यहूरी ईयर प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर अहमद इनामदार के मकान से जो है संदल शरीफ लेकर जो है बीजापुर की सरजमीन से जो है मैसूर के सरजमीन पर जो है आज शाम में 4:55 पर गोल गुम्बद एक्सप्रेस से रवाना हो रहे हैं। तो मैं इस खुशी के मौके पर तमाम शहर के हस्तियों को, क्योंकि 1 तारीख को संदल शरीफ है, मैसूर के सरजमीन टीपू सुल्तान जो है हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया को मशहूर है, वहाँ पर जो है हम बीजापुर से जो है गोल गुम्बद ट्रेन से होते हुए मैसूर पहुँच रहे हैं और 2 तारीख को वहाँ से हमारी रवानगी होगी। के इनामदार ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಕಿ ಅಂಪೈರ್ ಬಿಜಾಪುರ। ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಂಜೂರ್ ಅಹಮದ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಗಂಧದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಗಂಧವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ। ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅರಸ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ। ಅಪ್ಪಟ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆತ್ತ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ತಂದೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅವರು ಅದರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ 85 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೈಸೂರಿನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ಮದ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹನಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹನಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರೆ ಹೊರತು ಭಾರತದ ಯಾವ ಅರಸರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಂಜೂರ್ ಅಹಮದ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಅವರು ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ। ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅದರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರಿಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಏರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೆರೀತಾರೆ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು,
ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿಯೇ ಮಡಿದರೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ಸಣ್ಣತನ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿಯೇ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಈ ದೇಶದ ಅಪ್ಪಟ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ, ಈ ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಮಡಿದವನ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣತನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ KGP ಅಂತ ಪಕ್ಷ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು, ಸದಾನಂದ ಗೌಡರವರು, ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಸಹ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಡೊಂಗಿ ರಾಜಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಇಚ್ಛೆ, ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಇತಿಹಾಸ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಈ ನಾಡಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶರಣರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ, 12 ಜನ MLAಗಳ ಹೆಸರಾಗ್ತಾರೆ, 10 ಜನ MLCಗಳ ಹೆಸರಾಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ಕೂಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬೇಡುವಂಥ ಸಣ್ಣತನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಸಿಂ ಪೀರ್ ವಾಲಿಕಾರ್, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ, ಬಿಜಾಪುರ. अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर अहमद, रिटायर्ड प्रोफेसर अंजुमन डिग्री कॉलेज, टीपू सुल्तान अभिमानी गढ़ महाविद्यालय के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। इस मौके पर मैं सारी दुनिया के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक शेर है, इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबाएंगे। कल जो ये अभी हाशिम पीर वालिकार साहब जैसे बताया, कल जो ये हरकत हुई है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जो फंक्शन हुकूमत की तरफ से मनाया जाता था उसको कैंसल किया गया है। ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की मुखालिफत नहीं, बल्कि वो आपसी सियासी मुखालिफत की वजह से उन्होंने किया है। इस मर्तबा इंशाअल्लाह अब तक जो हमारा प्रोसेशन घोड़े पर होता था, घोड़ों के अलावा इस मर्तबा टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का फंक्शन हाथी पर सवार होकर किया जाएगा। और इसके लिए तमाम हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सब लोग जो है इसका साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को चंद लोग गिने चुने उनको गलत उनका जो है तारीख़ पेश करके, तारीख़ इस बात की शाहिद है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कई मंदिरों को जो है बनवाने का उन्होंने ये किया, कई मठों को के लिए उन्होंने हिम्मत अफजाई की, उनको आज तक भी उनके रोज़ीने जो है लेते आ रहे हैं। मैसूर, श्रृंगापट्टनम वगैरह के अख्तराफ के इहातों में जहाँ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी, वहाँ कई मंदिरों में आज भी पूजा के वक्त में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाता है। ये चंद गिने चुने हजरात टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है चलने वाली बात नहीं है। और हम इंशाअल्लाह आज मेरे घर से तकरीबन 20 साल 25 साल से हम लोग यहाँ हर साल मेरे फैमिली के साथ जनाब हाशिम पीर वालिकार के सपोर्ट से, उनके क़यादत में हम ये संदल हर साल लेकर जा रहे हैं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का। मैं जब मेरी उम्र 12 साल की थी, मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तो तब से मैं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का शहदाई हूँ। मेरे वालिद मोहतरम मेरे दिल में टीपू सुल्तान की हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी जो है वो बिठाए हैं। उसके तहत मैं भी जैसे ही मुझे मेरा लड़का पैदा हुआ 1980 में, तो मैं उसका नाम टीपू रखा।
मेरी लाइब्रेरी में तकरीबन 5000 से ज़ायद किताबें हैं। मेरी लाइब्रेरी का नाम भी मैंने टीपू लाइब्रेरी रखा है। मेरी हर सवारी पर मैं टीपू लिखता हूँ फ़ख्र के साथ, क्योंकि ये एक बादशाह नहीं बल्कि एक वली सिफत बादशाह हो उतरे हैं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ताजुद गुजार थे, शरीयत के पाबंद थे। उन्होंने कभी जो है अपने दिल में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं रखा। वो हिंदू मुसलमानों ब्राह्मणों को सबको लेकर चले हैं, ये तारीख़ गवाह है। मैं आज इस मौके पर तमाम लोगों को अमन और सुकून के साथ टीपू सुल्तान, कल जो है 1 अगस्त को श्रीरंगपट्टन में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का संदल शरीफ है। हम उसमें शामिल होने के लिए, हम मेरे घर से हर साल 20-25 लोग, हमारे फैमिली के लोग जाते हैं। इंशाल्लाह आज गोल गुंबद एक्सप्रेस से हम संदल के लिए निकलेंगे। उससे पहले मैं मेरे पीर मुर्शद इकबाल हाशमी साहब, हाशिम पीर दरगाह ब्रदर सज्जाद नशीन, उनके दस्ते मुबारक से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के परचम को संदल माली की रस्म अदा करके ख्वाजा अमीनुद्दीन आला, जो ख्वाजा अमीनुद्दीन आला जो है टीपू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह उनके खलीफे हैं। ख्वाजा अमीनुद्दीन आला के खलीफे टीपू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह हैं। लिहाजा वहाँ से होते हुए हम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के श्रीरंगपट्टन पहुँचेंगे और कल वहाँ ये संदल शरीफ यहाँ से गंजाम नामी जो इलाका है वहाँ से हम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के गुंबद तक संदल में पहुँचेंगे। मैं डॉक्टर मंजूर अहमद, रिटायर्ड प्रोफेसर अंजुमन कॉलेज, टीपू सुल्तान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बीजापुर। तारीखी शहर बीजापुर से आज जो है हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का संदल मुबारक डॉक्टर प्रोफेसर रिटायर्ड प्रोफेसर मंजूर अहमद इनामदार कि इनके मकान से जो पिछले 25 साल से ये संदल माली की रस्म लेकर ये मैसूर पहुंचते हैं और 1 अगस्त को मैसूर में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के संदल माली के उस प्रोग्राम में शरीक रहते हैं। आज यहाँ से निकले हैं अपने रिश्तेदारों फैमिली के साथ। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के एक बहुत बड़े शहदाई हैं, तो वो निकले हैं और इस मौके पर सियासी रहनुमा हाशिम पीर वालीकर साहब और दिगर लीडरान भी यहाँ पर शरीक रहे। आज शाम 4 बजे गोल गुंबद एक्सप्रेस से वो मैसूर को पहुँचेंगे और वहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के संदल माली में शरीक रहेंगे। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।